Hello and welcome back to our channel Fake Safari. My name is Abhishek and I hope you guys are doing good and studying properly. As we know, the J is almost here. So I'm just trying to help you guys with a couple of good questions. And today I picked up some questions from the NLM. Likewise, I'm going to come up with some more questions from the different topics. And if you're just watching this video, just watch it properly and then try to solve this question on your own after you stop the video. That is just going to help you to understand the concept in better ways. And I'm sure you must have done all these topics before. It's just like a quick recap, and these probably are going to be some help for you for sure. All good, bacho? Now let's quickly start with the question number 1 of the day that says we have a wedge having some angle theta as its inclination, and there's a rod which is like constrained from moving into the horizontal direction. It can only move up and down. Now it's given that the ratio of the masses of the rod and the wedge is eta, and we have to find the acceleration of the rod and the wedge. Well, there is no friction and it is kept on the ground. There is no friction as such and it's kept on the ground. So the coefficient of friction is, let's say, 0 between all the surfaces. Now this is a very classic question of the constraint motion, wedge constraint, that is what we are going to use over here. आप ऐसे समझो इसको कि if this moves towards right, because this is going to apply certain amount of force right on the wedge, तो wedge क्या होगा, it's going to move right. ये right जाएगा और ये भाई साहब नीचे आएगा. Fair enough, right? Yeah. तो चलो start करते हैं. And I'm sure you must have seen the previous video where I've taught you the wedge constraint and the string constraint. अगर नहीं देखा आपने तो एक बार देख लो उसको, that is going to be helpful to you. चलिए तो पहला काम क्या करेंगे बच्चों हम लोग. Let us first understand कि how we are going to proceed. पहला काम होता है कि हम लोग start कैसे किया जाए. तो obviously बात है कि क्वेश्चन हम लोग समझ चुके हैं कि this is going to come down and this is going to apply the force at this surface of contact between the wedge and the rod, और ये भाई साहब को इस तरफ मूव करेगा. ठीक है ना जी. Anyways, so whatever the acceleration this rod has, there should be some relation with that acceleration to the acceleration of the wedge. तो एक काम करते हैं, इसका मान लेते हैं acceleration हम लोग a for apple, या फिर aw मान लो, acceleration of the wedge, इन भाई साहब का मान लो रॉड का ar. कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना. बहुत अच्छे. आई एम श्योर यू गाइज इफ यू हैव सीन द कंस्ट्रेंट मोशन, बहुत अच्छे. नहीं तो लिंक मैं आपको इधर मिल जाएगा, आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. प्लीज वॉच दैट वीडियो. ओके, फ्रॉम देयर वी नो दैट कि इफ आई जस्ट फ्रॉम द वेज कंस्ट्रेंट व्हाट वी नो कि द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ, in this case I'm using the word acceleration because that is what we need, component of acceleration along normal to the surfaces in contact, normal to the surface in contact should be equal, right? Should be equal. क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो obviously the wedge and rod का जो contact है वो छूट जाएगा. So the component of its acceleration along the normal to the surface in contact, a normal to surface in contact है, इसका normal ऐसे होगा obviously, and इसका acceleration का एक component which is like normal to the surface in contact, दोनों equal होना चाहिए, तभी जाके they will remain in contact और वो साथ में movement भी करेंगे. Well, that is called as a wedge constraint. मैंने आपको reference के लिए लिख दिया है, चाहो तो आप like I've told you, you can watch the video. So एक काम करते हैं ना, can I just take the component of AR, इसी डायग्राम में कर लेते हैं ना. The component of AR अगर ये थीटा है बच्चों, तो लेट मी ड्रॉप परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, है ना. ए थीटा है तो ए वाला पार्ट भी थीटा हो गया, राइट. so this part is going to be theta. So this component is going to be AR cos theta, और इसका एक कंपोनेंट होगा आपका इस तरफ, जिससे अपन को कुछ लेना देना इस क्वेश्चन में है नहीं, है ना. बट फॉर नाउ यू शुड नो दैट कि दैट इज आल्सो गोना बी अ कंपोनेंट जो हो जाएगा आपका AR sin थीटा. ओके, लाइकवाइज वी आर आल्सो गोइंग टू हैव द कंपोनेंट्स ऑफ दिस AW, है ना. AW का कंपोनेंट क्या हो जाएगा बच्चों, सिंस दिस इज AW, मैं इधर ही लिख दे रहा हूं, दिस इज AW. इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, वन वुड बी अलोंग दिस, अदर वुड बी अलोंग दिस सरफेस इन कांटेक्ट. ऑल गुड. तो अगर आप ध्यान से देखो, ये थीटा है भाई साहब, तो ये थीटा हो गया, राइट. थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा. तो ये जो कंपोनेंट होगा दैट इज गोना बी AW, और ये कंपोनेंट हमारा इस तरफ हो जाएगा, है ना. मैं इसको ऐसे लिख देता हूं इधर ही, तो इसका एक कंपोनेंट कैसा हो गया, इस तरफ हो जाएगा, है ना. और एक कंपोनेंट आपका इस तरफ हो जाएगा बच्चों. अरे यार बन जा, हाँ लाइक दिस, है ना. तो मैं इधर ही लिख दे रहा हूं, दिस कंपोनेंट इज गोना बी, जो रेड में है, AW
sin theta है ना. So this will be the component of the AW along this normal. Clear है ना बच्चों, दिख रहा है, अच्छी बात है. तो चलो फिर from the wedge constraint what we have is AR cos of theta should be equal to AW sin of theta. ठीक है जी. That means I can say AR should be AW tan theta. चलिए हमारा पहला रिलेशन मिल गया किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द वेज के बीच में एक रिलेशन हमको मिल गया. नाउ वेल दैट इज नॉट सफिशिएंट. अब क्या करें, तो ऑब्वियसली वी हैव टू ड्रॉ द एफवीडीज. हम लोग एनएलएम का यूज करेंगे ना, एफवीडी बनाकर सारे फोर्सेस को लिखेंगे और उसके रिजल्टेंट मोशन को लिखेंगे बच्चों. तो ठीक है, पहला काम करते हैं, रॉड का एफवीडी बना लेते हैं. ठीक है जी, ये हमारा रॉड हो गया. थोड़ा सा मैं इसको इंक्लाइन ही दिखा देता हूँ ताकि वो इंक्लाइन ही है. लेट मी से कि इस पॉइंट पे कितना इसका mg लग रहा होगा, ऑब्वियसली सेंटर से नीचे की तरफ. एंड दिस mg विल हैव टू कंपोनेंट्स. एक हमारा इफ इट इज थीटा, आपको ऑलरेडी पता वो थीटा है ना, तो दिस इज गोना बी हाउ मच mg cos ऑफ थीटा. और एक लग रहा होगा इस पे नॉर्मल रिएक्शन, तो ऑब्वियसली दैट इज गोना बी दिस वे. तो मैंने इसको नॉर्मल लिख देना है यहाँ पे. करेक्ट है. अच्छा जी, अब एक बात और बताओ आप, अगर मैं वेज का एफवीडी बनाता हूं, वेज का अगर एफवीडी बना लेते हैं यहाँ पे, दिस इज थीटा, तो वेज पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहा है. एक तो खुद का mg लग रहा है, तो इफ आई एम जस्ट शोइंग इट हियर फॉर द सेक ऑफ शोइंग, अदरवाइज mg इज गोना एक्ट ऑब्वियसली एट द सेंटर ऑफ मास, बट मैं दिखा रहा हूं आपको यहाँ पे. ठीक है. और एक फोर्स हमारा क्या लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है इस तरफ, एक्शन रिएक्शन पेयर है. एनी अदर फोर्सेस एक्टिंग अपॉन दिस, नहीं ना. नाउ द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज टेकिंग प्लेस टुवर्ड्स राइट, तो ऑब्वियसली बात है नॉर्मल का कुछ कंपोनेंट होगा जो एक्सेलरेशन को सपोर्ट कर रहा है बच्चों. तो इन भाई साहब का कौन सा कंपोनेंट होगा, तो आई नो दिस एंगल इज थीटा, राइट. तो नॉर्मल के दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं, एक डाउनवर्ड और एक हमारा ऐसे हो जाएगा परपेंडिकुलर. तो दिस शुड बी n sin थीटा. ये हमारा हो गया नॉर्मल का कंपोनेंट. तो कैन आई जस्ट राइट इट फ्रॉम हियर दैट n sin थीटा बच्चों शुड बी इक्वल टू, क्योंकि दिस इज एक्सेलरेटिंग विथ AW, n sin थीटा और भी कुछ फोर्सेस लग रहे हैं क्या, नहीं ना. तो n sin थीटा शुड बी व्हाट, इसका मास कितना दे रखा था, लेट अस सपोज कि मैंने इसका मास ले रखा है स्मॉल m और इसका मैंने मान रखा है लेट्स सपोज कैपिटल M, है ना. तो कैपिटल M टाइम्स ऑफ A, ये हो गया पहला रिलेशन. अच्छी बात है. एक और क्वेश्चन में दे रखा था, है ना, द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द रॉड एंड द वेज इज ईटा. तो लेट मी राइट दैट m स्मॉल m अपॉन रेशियो ऑफ द मास ऑफ द रॉड एंड द वेज, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इज इक्वल्स टू ईटा, है ना. ऐसा कुछ ले रखे. ठीक है जी. तो स्मॉल m शुड बी हाउ मच, ईटा टाइम्स ऑफ कैपिटल M, राइट बच्चों. क्लियर है ना. अच्छी बात. अब आगे बढ़ते हैं. आई थिंक मैंने उसको उल्टा लिख दिया ना, सॉरी बच्चों. आई थिंक इट शुड बी गिवन दिस वे ना, द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द वेज एंड द रॉड, है ना, जो एक्चुअल क्वेश्चन है इज दिस वेज एंड द रॉड, है ना, इज ईटा. दैट मींस कैपिटल M अपॉन स्मॉल m is eta, so capital M should be in eta times of small m, है ना. ये हमारा सेकंड इंफॉर्मेशन है जो कि क्वेश्चन में दे रखा था. ऑल गुड. गोइंग फर्दर, अब इस रॉड का एफवीडी देख लो इसका, है ना. तो दिस इज कमिंग डाउन विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ a, आपका रॉड मान लो. इस पे फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं, mg डाउन, और एक फोर्स लग रहा है आपका ए नॉर्मल रिएक्शन. तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट विल बी एक्टिंग अपवर्ड व्हिच इज गोइंग टू अपोज दिस, है ना. तो नॉर्मल का ब्रेक कर दो बच्चों. तो नॉर्मल का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये थीटा है, तो दिस इज गोइंग टू बी थीटा. तो दिस कंपोनेंट शुड बी हाउ मच, मैं इधर लिख दूं n cos ऑफ थीटा, और ये हमारा हो गया n sin थीटा, राइट बच्चों. नाउ दैट वी नो इट इज ओनली मूविंग वर्टिकल अप एंड डाउन, एक कंस्ट्रेंट के कारण इट इज नॉट मूविंग लेफ्ट और राइट. दैट मींस इट्स नेट एक्सेलरेशन हैज टू बी इन द वर्टिकल लाइन. And we also know it is falling downward only, नीचे की तरफ ही आ रहा है ना. तो can I now write mg minus n cos theta is equals to mg minus n cos of theta is equals to m into acceleration of the rod. यहाँ पे बच्चों वेज था, है ना. Now we have one equation, two equation and the three equation. वेरिएबल्स कितने हैं देख लो, एक नॉर्मल वेरिएबल है, एक AW है और एक AR है. करेक्ट है ना. और कुछ भी वेरिएबल है क्या जी, नहीं ना. तो दीज आर द थ्री वेरिएबल्स वी हैव. तो एक बात तो हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि आंसर क्वेश्चंस में ईटा दे रखा है, क्वेश्चन में मासेस वर नॉट गिवन व्हिच आई हैव टेकन फ्रॉम माय एंड स्मॉल m एंड कैपिटल M. तो आंसर हैज टू बी इन द टर्म्स ऑफ ईटा.
तो वो उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ ईटा, वो बड़ी बात नहीं है। फिलहाल के लिए देखो आप कि कैन आई जस्ट राइट ए आर इन टर्म्स ऑफ ए डब्ल्यू, लिख सकते हैं ना ए आर को ए डब्ल्यू में, तो चलो लिख देते हैं बच्चों। तो एम जी माइनस, और कहीं ना कहीं एन नॉर्मल को भी लिख सकते हैं हम लोग ना, नॉर्मल को भी हटा सकते हैं यहां से बच्चों, ठीक है जी। चलो फिलहाल के लिए रहने तो एन कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ, आपका हो गया ए आर विल बी इक्वल टू ए डब्ल्यू टैन थीटा, है ना जी, ये आपका हो गया ए डब्ल्यू टैन थीटा। इस नॉर्मल को भगा देते हैं, है ना, लेट्स टेक दिस नॉर्मल ऑफ, ये हट जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। ऑल्सो लेट अस ट्राई टू राइट एम इन टर्म्स ऑफ ईटा एंड स्मॉल एम, वो भी लिख देते हैं जी। तो फिलहाल के लिए देखो आप नॉर्मल को क्या लिख सकते हो, नॉर्मल कुड बी रिटन एज capital M, which could be written as eta times of small m into acceleration of the wedge upon sin theta. I hope it is okay to all of you. अब इसको बच्चों हम लोग यहां पुट कर देंगे, तो स्मॉल एम जी माइनस ईटा टाइम्स ऑफ स्मॉल एम ए डब्ल्यू अपॉन साइन ऑफ थीटा इनटू दिस फेलो कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू स्मॉल एम ए डब्ल्यू टैन थीटा। You can clearly see कि m and m चला गया, है ना बच्चों, बचा गया भाई हमारे पास aw चाहिए, तो aw को इस तरफ लेके चले जाओ, cos by sin will become cot, तो कैन आई राइट दिस aw, मैं tan थीटा को लिख दे यहाँ पर, tan थीटा और ये प्लस चला जाएगा, cos by sin cot of theta eta times of cot of theta that is going to be g, आपका aw मिल गया यहाँ से ना, तो aw should be equals to g upon tan थीटा प्लस ईटा टाइम्स ऑफ कॉट ऑफ थीटा। तो बच्चों ये हमारा हो गया एक्सेलरेशन ऑफ द वेज, ये हमारा पहला आंसर हो गया, राइट। नाउ व्हाट डू वी नीड ए आर, तो ए आर को चलो यहां से निकाल लेते हैं, ए आर शुड बी इक्वल्स टू ए डब्ल्यू टैन थीटा, ए डब्ल्यू अपन के पास है, तो जी टैन थीटा अपॉन टैन ऑफ थीटा प्लस ईटा टाइम्स ऑफ कॉट ऑफ थीटा। चाहो तो टैन थीटा को यू कैन टेक आउट कॉमन, तो हम निकाल सकते हो, आप कोई बुरी बात नहीं है, निकालिए लो, चलो ठीक है भाई, विल बी हैविंग जी टैन थीटा बाहर आ गया 1, तो n कॉट थीटा बाय टैन थीटा विल बी कॉट स्क्वायर थीटा, तो बच्चों आपको हो गया ईटा टाइम्स ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा। सो दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड, ये हमारे पास आंसर्स इसके मिल चुके हैं। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द वेज कंस्ट्रेंट, आप इसको अच्छे से समझ लो, नोट कर लो और फिर ट्राई करना खुद से एक बार सॉल्व करने का जी, ठीक है। well that is gonna make sure कि आप इसको पूरी तरह से समझ चुके हो, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।